I'm Tanvi. So that was a lovely trailer that we saw, and I wish the film a grand success. So now let us proceed with our event. Cinema is the most beautiful fraud in the world. This was quoted by Sir Jean-Luc Godard. And well, he was right. But yet, when literature meets cinema, this beautiful fraud transforms into something that we can see and we can feel. Think about it like this. When we read a book, we imagine its characters, we build its scene, and when we see the film version of it, well, do they exactly match our imagination? Sometimes the characters do, and sometimes they don't. Yet, they leave an even deeper mark on our minds. A well-written novel or a poem carries its soul in words, but on the silver screen, that soul transforms into light, sound, and motion. It turns something imaginative into something tangible. Some stories lend themselves naturally to cinema. Their images leap out of the text, begging to be filled. And sometimes the reverse happens too, which is when films inspire literary creations. When this thing happens, it leaves us with a line that blurs between real and real, leaving us with stories that belong neither to page nor to frame, but to the emotions they evoke. Welcome to Serene Films Presents From Reels to Reality, Literature on the Silver Screen, a session that promises to explore how stories leap off pages and into hearts through films. So let me first start by introducing our moderator, Mr. Umashankar Yadav. He is a multifaceted Indian professional known for his contributions to literature, cinema, and entrepreneurship. As a writer and poet, he authored the book Beyond Dreams. Okay. Okay. Now I would like to introduce our panelists, our speakers, Mr. Omkar Petkar, Mr. Sandeep Yadav, Ms. Tanushka Sharma, and Mr. Uday Singh. Thank you. Thank you. I'll hand over the mic to Umashankar sir and leave the rest for him. Thank you. So welcome to Ahmedabad International Literature Festival. This session is being presented by Serene Films, and we have just launched the trailer of our very ambitious Hindi feature film, Dropout. And we have with us very talented people. To my right, Mr. Omkar Petkar ji, creative powerhouse. He knows what he wants to do. He knows, he's very clear about the things, gives creative freedom to everybody. To my left, immediate left is young actor and superstar, future superstar, Uday Singh. And to her left, to his left is Tanushka Sharma, the heartthrob of how many millions? 4 millions. 3.9 millions, थोड़ा कम कर दिया. और मेरे बाद में जो दाहिनी तरफ ज्वाइन किए हैं संदीप यादव जी, आपने इनको बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा होगा. इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, थप्पड़, आश्रम सीरीज, और आप खुद ही बता दीजिए. अरे आश्रम, बाटला हाउस, थप्पड़, गुलाबो सिताबो, भौकाल. अभी एक चतुर्नार नाम की एक फिल्म आई थी, उसके डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी हैं, वो गुजरात से ही हैं, जिन्होंने ओ माई गॉड बनाई थी. और अभी 17 तारीख को 17 अक्टूबर को मेरी एक फिल्म Z5 पर आ रही है, भागवत नाम है उसका, अरशद वारसी के साथ. सो थैंक यू. अभी हम और बातें करेंगे आपसे. अब आप लोगों से पर्टिकुलरली यंग स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, ये फिल्म जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यंग स्टूडेंट्स के बारे में है. हाँ, ये दोनों यंग स्टूडेंट हमारे बाजू में बैठे हैं, इनके बारे में है. तो आप लोगों के पास जो भी सवाल हो कि फिल्म बनाने में और यंग स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, ज़रूर पूछिएगा बीच में. ओमकार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस फिल्म को बनाने में क्या प्रोसेस था और लोग क्या उम्मीद करें इससे. जैसे ट्रेलर के तुरंत बाद हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की उस हिसाब से कि ये स्टूडेंट की कहानी है, स्टूडेंट्स की फिल्म है. यहाँ पे एक यंग बच्चे का जो
डबल माइंड होता है कि उसको क्या करना है। यहाँ पर एक तरफ उसका पैशन है और दूसरी तरफ उसको जिस फील्ड में एक कॉमन स्ट्रीम है जिसमें धकेला जा रहा है, तो वो दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे अपने एम्बिशन को हासिल करता है, ये उसकी कहानी है, ये विट की कहानी है, ये स्ट्रेंथ की, रेजिलियंस की कहानी है। तो ये ऐसे जज्बे को ये दिखाती है कि जिससे हम लोग डेयर कर सके ड्रीम करने को। थैंक यू। तनुष्का, आपको ये रोल कैसे मिला? इंस्टाग्राम के थ्रू मिला, रील्स बनाती थी, फिर मुझे उमा शंकर सर मिले और इन्होंने मुझे ढूंढा। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मूवी में भी। और सर बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, पूरी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी शूट किया है हमने और बहुत ज़्यादा एकदम पारिवारिक माहौल रहा वहाँ पे। मुझे एकदम ऐसा लगा ही नहीं कि सब कुछ नया है मेरे लिए। सो थैंक यू। तो रील बनाने वाले बच्चों कभी ये मत सोचना, जैसे लोग बोलते हैं ना रील बनाते रहते हैं, रील ने इनको स्टार बनाया है और रील के थ्रू ही ये रोल भी मिला है। थैंक यू तनुष्का। उदय, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने कलीग्स के साथ, डायरेक्टर के साथ काम करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उमा शंकर सर फॉर मतलब creating this platform for all of us and experience बहुत अच्छा रहा। अभी तो फ़िलहाल सब दोस्त जैसे हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आया करने में भी। ड्रॉप आउट फिल्म में एक जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि लिमिटेड प्रोफेशंस हैं, या तो हम इंजीनियर बन जाएं या तो डॉक्टर बन जाएं या तो मतलब ऐसे लिमिटेड 2-3। बट ड्रॉप आउट में आप एक चीज़ सीखेंगे कि नहीं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही करिए, ये करिए, ये करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी खुशी। पैसा इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट है, आई कांट बी अ फिलोसफर अंटिल आई एम रिच, जैसा शाहरुख खान जी ने कहा था। तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है बट आपकी खुशी इम्पॉर्टेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी तो आप लोग ने ट्रेलर देखा है, होपफुली फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबने बहुत मेहनत की है। सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने बहुत जल्दी शूट किया है, बहुत ज़्यादा जल्दी शूट किया है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था स्केड्यूल सबके लिए। इवन डायरेक्टर साहब के लिए क्या? अरे सर मतलब मेरा क्या होता था, मेरा सीन लगा, हो गया, मैं गया बैठ गया, फिर तनुष्का का लगा, तनुष्का ने किया, बैठ गया, संदीप जी का लगा, संदीप जी बैठ गए। हाँ, उमा शंकर सर दौड़ रहे हैं हर जगह। अब ओमकार सर क्या है, डायरेक्टर हैं। अब ये जाएं तो कैसे जाएं, अब ये जाएंगे तो सीन कौन लेगा, तो ये खड़े हैं। हाँ उदय क्या, हाँ हो गया, अब ये वाला लगना है, इधर इधर भागना है, उसको बोल तैयार हो जाए, ऐसा 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 करना है। तो मतलब सबसे ज़्यादा हेक्टिक जो था किसी के लिए बहुत ज़्यादा, वो थे ओमकार सर, लगातार खड़े रहे थे। दूसरे राउंड में फिर बात करते हैं। सो संदीप जी, आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के, बहुत ही स्टैब्लिश्ड और बहुत ही नामी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़े बैनर की फिल्मों में भी काम किया, तो इस फिल्म में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा और इस फिल्म से आपको क्या उम्मीदें हैं? इस फिल्म में काम करने में मज़ा तो आया ही, और मुझे तो ज़्यादा मज़ा इसलिए आया क्योंकि मैं एकदम ठेठ गांव का रहने वाला आदमी हूं, और शूटिंग चूँकि गांव में हुई थी तो मुझे मज़ा इसलिए आ रहा था कि गांव में शूटिंग हो रही है। गांव में कैमरा, लाइट्स, ये सब देखना गांव वाला होने के नाते मेरे लिए बहुत ही अलग था। तो वो एक्सपीरियंस तो रहा ही। और हमारे डायरेक्टर साहब ने, मुझे हमेशा उन डायरेक्टर्स के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो अपने एक्टर्स को बहुत स्पेस देते हैं, बड़ा कंफर्टेबल कर देते हैं कि सर मेरी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, सीन देख लीजिए और आपको जैसा लगता है आप बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे स्पेस दिया था। मेरा रोल जो भी है इस फिल्म में, प्रधान जी बना हूँ मैं गाँव का, तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हुई। तो उम्मीद है कि वो आप जब फिल्म रिलीज़ होगी आपको वो कैरेक्टर पसंद आएगा। तो ऐसे डायरेक्टर बड़े सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि एक्टर उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल रहता है, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। तो एक डायरेक्टर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और हमारे उमाशंकर सर के साथ पुराना रिश्ता है, सोशल मीडिया का रिश्ता है, लंबे समय से हम लोग जुड़े रहे, बातचीत करते रहे और बड़ी हमारी क्रिएटिव बातचीत होती थी। तो पहली बार जब इन्होंने फ़िल्म के बारे में प्लान किया तो इनका सोचना था कि यूपी के किसी गांव में शूट करेंगे, तो उस पर डिस्कशन हमारा हुआ। और चूँकि सर की ये पहली फिल्म है तो फिल्म मेकिंग के बिहाइंड द कैमरा जो भी तैयारियां होती हैं उसके बारे में बहुत सारी
तैयारियों को लेकर बहुत असमंजस था, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सर फिल्म बनाना आपकी अपनी बेटी की शादी करने से बड़ा काम है। हम लोग रोज एक शादी करते थे करीब करीब शूटिंग के दौरान। आपको टेंट वाले से लेकर हलवाई वाला जो काम कर रहा है सबकी सुननी है, किसी से कहना कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऐन वक्त में अगर उसने सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया तो सब गड़बड़ होगा। तो आपको सुनते जाना और दहेज भी देना पड़ेगा, बेटी की शादी अच्छे से हो। तो वो भूमिका इन्होंने बड़ी अच्छी से निभाई। पूरी यूनिट बहुत खुश थी, खाने पीने से लेकर सारा अरेंजमेंट, हम लोगों का होटल लाना जाना और लोकेशन पे भी। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स का भी फिल्म इंडस्ट्री में होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपके पास अच्छा कंटेंट पहुँचे, अच्छा सिनेमा पहुँचे। आज के टाइम में जहाँ अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, वहाँ ड्रॉप आउट जैसी मोटिवेशनल फिल्म शायद ही कोई सोच रहा होगा, मुझे तो नहीं पता। हमारा बॉलीवुड तो बच्चों की फिल्में बनाता नहीं है, और बनाता है तो बच्चे उसमें खाली टूल्स की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं, कहानियाँ बड़ों की होती हैं। लेकिन इस फिल्म ड्रॉप आउट के माध्यम से मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि फिल्म पूरी तरह से बच्चों की कहानी है, जिसमें हम टूल्स बने हैं, बड़े टूल्स बने हैं। तो ये फिल्म बड़ी कमाल बनी है और उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, और मैं आगे चाहूँगा कि जब आप 100 करोड़ की फिल्में बनाएं तो भी मुझे याद करें। बिल्कुल याद करेंगे हम। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल आ जाए बात करते समय ही तो हाथ उठाइएगा। हम लोग वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक दे देंगे उधर। बताइए, पूछिए क्या रिलीज डेट। बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे, डेट तो नहीं दे सकते बट जल्दी आ जाएगी। कमिंग सून, रिलीज डेट इज कमिंग सून। तो जैसा संदीप जी ने बताया कि देखिए प्रोडक्शन का काम और डायरेक्शन का काम प्लस एक्टिंग का काम बहुत ही मेहनत वाले होते हैं, बहुत ही रिस्क वाले होते हैं, बहुत ही बड़ा हार्ट। अभी मजेठिया साहब बता रहे थे कि क्रिएटिव लोगों को दे नीड टू हैव अ बिग हार्ट। कई बार आपको निराशाएं भी मिलेंगी, कई बार आशाएं भी मिलेंगी, बट आप यू कांट लूज योर हार्ट, यू कांट गेट डिसहार्टेंड। आप कभी निराश नहीं हो सकते हो। अगर को कला आपकी एक्चुअली आप कला के उपासक हो, अगर कला को आप प्यार करते हो तो कला आपकी लोग पसंद करें ना करें वो आपको ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। पसंद करना हमेशा अच्छा ही लगता है सबको, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी रील, हमारी फिल्म, हमारा कोई भी किताब पसंद नहीं आई तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं अपने लोगों से बात करूँगा। देखिए हम प्रोड्यूसर हैं, पैसा लगाया है बहुत सारा, सबके कैरियर लगे हैं, सबकी कहानियाँ लगी हैं, सबका प्रोफाइल लगा हुआ है, इसमें हमारा भी पैसा लगा हुआ है, हम सबका लगा। तो ये जो रिस्क होता है ये बड़ा रिस्क होता है। रिस्क मतलब ये होता है कि आपको ये सोचना है कि हम किसके ऊपर रिस्क लगाएं। जैसे तनुष्का ने बताया कि रील बना रही थी, उदय ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, संदीप जी ऑफ कोर्स, हम सब लोग बड़ी प्रोजेक्ट्स लेके पहली बार आए थे। तो बड़ा रिस्क होता है, बड़ा दिल रखना पड़ता है। आपको पता नहीं कौन क्लिक कर जाए, क्लिक कर गए तो यू आर स्टार, नहीं गए तो आपको रेडी रहना है कि जो भी हमें डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, जो भी हमें निराशा मिल रही है, उसके लिए हमें रेडी रखना है। बट जिस तरह से हमारे लोगों ने काम किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी लोगों के द्वारा, और जो भी जितना भी लोगों ने देखा है बहुत पसंद किया। तो अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल ओमकार जी से है कि जो मेरी जिस तरह से धड़कनें बढ़ती हैं कभी कभी, आपको डायरेक्टर्स आर द फेसेज ऑफ द फिल्म, वो डायरेक्टर ही मालिक होते हैं एक्चुअली। प्रोड्यूसर का तो पैसा होता है, डायरेक्टर का करियर होता है। तो आपका कभी दिल धड़कता है या धड़कनें बढ़ती हैं? सर बिल्कुल धड़कता है दिल तो। और अगर उस आपके सवाल से पहले सर मुझे कुछ ध्यान में आया था, उमा सर इन्होंने प्रोड्यूस की है फिल्म, लेकिन फिल्म मेकिंग के लिए इनका जो पैशन है, और इनके जितना ग्रेशियस आदमी मैंने नहीं देखा है, इनके जितना बेनेवलेंट आदमी मैंने नहीं देखा है। और सेट के ऊपर भी मतलब अगर कहीं दूर आप उनको देखेंगे और अगर किसी से पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है ये फिल्म किसने प्रोड्यूस की है, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि किसने प्रोड्यूस की है। ये इतने सादगी से हमेशा रोज़ जितने भी दिन हम लोगों ने शूट किया ये सेट पे रहते थे कि हम लोग किसी को पता ही नहीं, इतना एक घर वाला माहौल पूरा बना के रखा था सेट, इसीलिए इतना रिलैक्स होके हम लोग सब काम कर पाए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी जो मुझे पर्सनली सीखने को मिली। सर धड़कने बढ़ती है या नहीं आपने पूछा, हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल। जब ट्रेलर चल रहा था तब भी धड़कने तेज़ी थी, लग रहा था कि सबको पसंद आएगा नहीं आएगा। हम लोग यहाँ से एक्चुअली ट्रेलर देखने के बजाय हम लोग लोगों के एक्सप्रेशंस देख रहे थे। इसमें आंखें बंद किया, कह रहे नहीं मुझे नहीं देखना है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं ना, जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, मुझे नहीं देखना तुम्हारा रिजल्ट,
बाद में पता चला अरे इसने तो टॉप किया है, फिर चाहिए मुझे। लेकिन डर इतना लगा रहता है बच्चे पेरेंट्स को कि मुझे अपनी फिल्म नहीं देखना। मैंने बहुत सारे बड़े फिल्म वालों को सुना था कि भाई एक बार हमने काम कर दिया ना, उसके बाद हम उसको देखते ही नहीं है। अच्छा। बड़े बड़े डायरेक्टर ऐसा बोलते हैं कि आप जनता को जो देखना देखना, आई डोंट वांट टू सी इट, मैं देख नहीं सकता हूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात के लिए भी बुरी बात के लिए भी हिम्मत नहीं होती देखने की। करेक्ट। हाँ बट बिल्कुल, बट ये इतनी बारी हम लोगों ने इसको, मतलब मैं सर के साथ हमेशा रोज़ ही ऑलमोस्ट टच में रहता हूँ, तो मैं जो भी हम लोग एडिट करके ड्राफ्ट निकालते पहले सर को भेजते, एक आध घंटे में उनका कुछ रिस्पॉन्स आ जाता है। फिर तो हम लोगों ने करीब 300 बार तो ये ट्रेलर देखा ही होगा, करीब 300 से 400 बार हम लोगों ने, तो हमारे लिए वैसी नई बात नहीं थी। बट सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस को बिल्कुल अच्छा लगा है हमारा ट्रेलर, और जब गाना रिलीज़ होगा, क्योंकि हाँ अच्छा, बिल्कुल। हाँ, और कुछ सवाल पूछ रहे थे बच्चे लोग। ये दोनों लोग हैं ना, ये दोनों एक्ट करेंगे आपके लिए, आप पूछना ये क्या करना चाहते हैं। इन्होंने डांस है, इनका गाना भी है दोनों का। इन दोनों ने बहुत बढ़िया डांस और गाना किया है। गाने की रेडी रहना भाई। हेलो ऑपरेटर, प्रोडक्शन टीम, वो गाने की 2-3 लाइनें सुनाना है, जस्ट कीप इट रेडी। तो ये दोनों डांस करेंगे उस पर। ओके कुछ कर देंगे थोड़ा सा परफॉर्म ओके। कर दो, हाँ। नाउ कमिंग बैक टू और सर हाँ, फिल्ममेकिंग। उदय के बारे में रह गया बताना। हाँ जी। कि मतलब हमारे सेट के ऊपर मैन पावर तो वैसे था, लेकिन पैशन जो होता है ना, जो हर किसी में था पैशन, फिल्म मेकिंग का पैशन। तो उदय सिर्फ एक्टर नहीं था, वो हमारे डायरेक्शन टीम में भी था, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी करता था। तो अगर मैं बोलूँ कि अरे उदय वहाँ पे क्राउड है, संभालना है, तो वो भाग गया। हाँ, वो क्राउड को मैनेज कर रहा था वहाँ पे तो मल्टीटास्किंग, पूरी टीम ही मल्टीटास्किंग की है हमारी टीम ने। अब प्रधान जी एक डायलॉग आप बोल ही दो। आप एक डायलॉग फिल्म का बोल दो। अभी ये हमारे जो हीरो हैं धीरे से बोलेंगे कि सर फीस तो मुझे खाली एक्टिंग की मिली है। तो ये संदीप जी ने प्रधान जी बने हैं गांव के, और इन्होंने बहुत ही जमा दिया है अपनी बात को। अब डायलॉग तो ये बोलने से मना कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि तनुष्का, आप इस फिल्म के साथ जो काम करने के बाद आपको जो कुछ सीखने को मिला हो, जो यंग स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपकी उम्र वाले हैं, तो उनको क्या अपनी फीलिंग के बारे में बताओ कि जब आप कोई बड़ी प्रोजेक्ट करते हो, मतलब बड़ी तो हम उस तरह से नहीं, अपनी बात है, नहीं कहना चाहते हैं कि बड़ी है कि छोटी है, बट आपकी कोई सपनों की आप चाह रहे थे कि वो मिल जाए और वो मिल जाती है, तो क्या महसूस होता है? इन बच्चों को बताओ आप। ये शायद इस एज ग्रुप के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा, बट मेरे लिए विवाह मूवी मेरी फेवरेट रही है। सो मेरा स्टार्टिंग से एक ड्रीम था कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं परफॉर्म कर सकूं, जैसे कि विवाह रही है। बट हाँ, नहीं, विवाह मूवी के बारे में बता रही हूँ। तो मैं ये सोचती थी लिटरली, आपने शायद देखी हो, कोई है यहाँ पे जिसने विवाह देखी है? तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। फिर देखते देखते मतलब ऐसा हो गया कि कुछ ऐसा मिले, हम उम्मीद कर सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते। मैं रील्स बनाती थी, फिर जब मुझे सर मिले और इन्होंने मुझे स्टोरी मतलब मुझे पता चला कि ये कहानी है, और आस्था का जो किरदार है वो कुछ विवाह मूवी में जो पूनम है उससे मिलता जुलता सा है। मतलब उसकी जो अटायर है, कपड़े और बोलने का लहजा, सारी चीज़ें, और वो इंस्पायर भी कर रही है, तो मतलब वो चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मेरी जो सपनों की दुनिया थी उससे मैं बाहर निकली और वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगी। सो मैं यही कहूँगी इस एज ग्रुप को कि सपने देखो, बड़े सपने देखोगे तभी वो पूरे होंगे। अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो कैसे उन्हें पूरे करने का आप जज्बा ला सकते हो अपने अंदर? सो देखना चाहिए। छत की तरफ नहीं देखना, आसमान की तरफ देखना है। ट्रू। ऑन अ लाइटर नोट, अब मुझे नहीं अच्छा, सर ऑन अ लाइटर नोट, मुझे अभी पता चला कि ये इतना रोती क्यों थी हर सीन में। हाँ, इसको रोने का बड़ा शौक है। फिर रील में हंसती है, और आप हमारे जो फिल्म के सीन आते थे ना, वो एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ये ऐसी है जैसे कैरेक्टर के अंदर घुस गए, शी वाज इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। अच्छा, अभी कुछ बोल के दिखाओ या करके दिखाओ रील से, या चलो रोके दिखाओ। रोके दिखाओ, चलो रोके दिखाओ। जब ये छोड़ के जा रहा है तो कैसे रोना कैसे आ गया था? छोड़ के जा रहा था। ठीक है, ओके। एक्सप्रेशन आ रहे हैं, रुक जाओ। ओके, तो ठीक है। अच्छा, आप अपनी फिल्म का कोई एक आध करके बताइए। लोग देखते हैं आपको, 40 लाख लोग देखते हैं, करीब लोगों ने सबने देखा ही होगा। क्या कर सकते हो, एक आध करके दिखाओ। लाइव एक्चुअल देखना चाहते हैं लोग कि कैसे रील बनती है। सिर्फ अच्छा, रील नहीं, का आप सर ये करते हैं ना, यहाँ पे इनके डायलॉग्स ले लेते हैं। फिल्म का डायलॉग है, वो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई एक्टिंग कैसे होती है, और ये डायरेक्टर आप डायरेक्ट करेंगे। एक्शन नहीं सर, यही रहेगा। यार तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो, हम कह रहे हैं हमें नहीं करनी पड़ाई। पर इनकी बातों को तुम इतना दिल पर लेते क्यों हो? तुम इन्हें सामने से जवाब क्यों नहीं देते?
तुम्हें पता है आस्था, हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हमारे स्कूल में सभी बच्चे हमें मानते थे, सभी टीचर हमारा एग्जाम्पल देते थे, सब कुछ हमसे पूछा जाता था, हर किसी को हमारी ज़रूरत होती थी। लेकिन हम जब से यहाँ आए ना, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता है हमें। तुम्हें पता है, तुम्हें ना एक बीमारी हो गई है, क्या? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की बीमारी। ये सभी लोग तुम्हें तुम्हारे पहनावे की वजह से ताने देते हैं और तुम्हें इसी बात का कॉम्प्लेक्स हो गया है, और कुछ नहीं है बस। हम सिर्फ इतना नहीं है आस्था, हम जो करना चाहते हैं वो कुछ और है। हम कह रहे हैं हमें ये इंजीनियरिंग समझ ही नहीं आती। पर अब तो हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड बस ईयर बस 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 बाकी देखने देते हैं, तालियां बजाइए जोर से। फिल्म देखने देते हैं। पता लगा इनकी केमिस्ट्री का। ये हमारी फिल्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सीन है। हाँ, ये अपने ये दोनों लोगों का जब फिल्म देखोगे तो ये देवर इनटू कैरेक्टर। उदय वाज इनटू इट, मतलब इनको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। दिट वाज इवन लीजेंडरी एक्टर राजेंद्र गुप्ता जी ने बताया, यार ये बच्चा आपका इतना नेचुरल एक्टिंग कर रहा है, आपके सामने नहीं मुझे बताया था। ही वाज सो नेचुरल इन एक्टिंग। आपने बस वाला सीन देखा होगा ट्रेलर में। और तनुष्का जी, आपके वो एडिटर साहब आपको कहीं कास्ट करना चाहते हैं, मिलने ना इनको, वो बैठे हैं राहुल राजपूत जी, तो मिलना चाहते हैं? जरूर। ओके। और हाँ, सवाल यस पूछिए। वॉलंटियर्स कैन यू गिव माइक प्लीज। मैं ये देखिए, जानना हम चाहूँगा, ये फिल्म जो है ये हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि थिएटर और OTT दोनों में रिलीज करें। थिएटर में भी हमें लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज करने का भी प्लान है, बट अभी थोड़ा वर्कआउट होगा सब कुछ। वी आर लुकिंग फॉर, देखिए बैठे हैं हमारे पार्टनर अनेरी जी, मुंबई से इनको हमने इनवाइट किया है। अगर इन्होंने कुछ हमारी हेल्प कर दी तो हम इसको थिएटर भी रिलीज कर देंगे। टोटल ड्यूरेशन क्या है फिल्म का? अनेरी जी अब बताइए, थिएटर में रिलीज करें? ओके ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है एंड ये OTT और थिएटर सबका करवाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं। यस। टोटल ड्यूरेशन कितना है फिल्म का? ड्यूरेशन करीब 95 मिनट है, मतलब 1 घंटे 40 मिनट, 35 से 40 मिनट। या थैंक यू। आपसे एक सवाल पूछना था। सर आप ये जो आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है कि मतलब ये फिल्म बना रहे हैं हम, तो आपको मतलब ये इंस्पिरेशन या ये कहाँ से आया? या ओमकार जी, रिस्क में ही इश्क है और मुझे इश्क बहुत पसंद है। और जिसने इश्क नहीं किया जिंदगी में ना, वो जिंदगी जिया ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने रिस्क नहीं लिया, अजय चौधरी साहब आ रहे हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। सर ये पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं रिस्क में ही, मतलब रिस्क में ही इश्क है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम इश्क नहीं कर पाएंगे, और अगर इश्क नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी जीने का मतलब ही क्या है? वी हैव नॉट लिव्ड अवर लाइफ। हम हमेशा सिक्योरिटीज़ में जीते रहे कि नहीं नहीं यार ये हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारा वो पैसा बचता ही कहाँ है। मजेठिया साहब बता रहे थे एक एग्जाम्पल की 5,000-25,000 करोड़ रुपए स्टॉक ब्रोकर चले गए। वो उनका लास्ट में अफसोस यही था कि यार मैंने हर जगह इन्वेस्ट किया लेकिन अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया, अपने दिमाग पे इन्वेस्ट नहीं किया, अपने दिल पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो रिस्क में ही इश्क है सर। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो इश्क नहीं कर सकते, और इश्क ही जीवन है। मैं फिल्म के प्रोड्यूसर राइटर उमाशंकर सर से कुछ सवाल करना चाहता हूं, और मेरे मन में बहुत दिनों से है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, फिल्म मेकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिल्में प्रोड्यूस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मुझे ये फिल्म बनानी है, ऐसी ही फिल्म बनानी है और फिल्म में इन्वेस्ट करना है? क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है, चाहे आप छोटी फिल्म बना रहे हो चाहे बड़ी बना रहे हो। तो कैसे आपके मन में ये विचार आया? संदीप जी, मुझे जो जानते हैं लोग यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत सारे डॉक्टर्स, और मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई जब मैंने उनको बताया कि हमारी फिल्म आ रही। अरे यार बोल रहे थे आप 10 साल पहले बात कर रहे थे कि मैं आपके ऊपर फिल्म बनाऊंगा, आपकी फिल्म बनाऊँ, आपकी फिल्म तो आ गई। हम उस टाइम हंसते थे, मजाक बनाते थे आपके कि क्या है कुछ भी बोलते रहते हो यार। तो हमें कई बार क्या होता है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट कॉमन मैन। अब एक फिल्म का डायलॉग है, अगर आपने कहीं सुना हो तो, डोंट अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ और कैपेबिलिटी ऑफ कॉमन मैन। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना,
कौन कब जहाज उड़ाने लगेगा, कौन कब रॉकेट उड़ाने लगेगा, कौन कब क्या कर देगा, हम कई बार बड़े जजमेंटल हो जाते हैं। हमें लगता है अरे यार ये तो क्या करेगा, वो तो क्या करेगा। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम सरप्राइज होते हैं, अरे यार आपके मन में ये बात कैसे आई। हम नहीं जान रहे जो बच्चे पीछे बैठे हैं, या तनुष्का बैठी हैं, या उदय बैठे हैं यहाँ पे, या ओमकार जी बैठे हैं, कब कितनी बड़ी, या कल आप क्या करने वाले हो। जितने लोग हैं पता नहीं क्या कर जाएं। किसको पता था कौन कब राष्ट्रपति बनेगा, कौन कब प्रधानमंत्री बनेगा। कभी सोचा था हम लोगों ने? नहीं सोचा था ना। हुआ और होगा। इसलिए हमें हमारी जो मंजिल है ना, हमने उद्घाटन के टाइम में भी बात किया, छत नहीं है आसमान है। तो हमें सीढ़ियाँ नहीं चाहिए होती हैं। हम क्या करते हैं, सीधे रास्ते अपने बनाते हैं। हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना ही नहीं है। सीढ़ियाँ उनको चाहिए जिनको छत पे जाना है। हमें छत पे नहीं जाना, हमें आसमान पे जाना है। तो आसमान के लिए आपके मन में क्या क्या चल रहा होता है। और संदीप जी, सटीक जवाब आपकी बात का ये है कि फिल्म जो सिनेमा है वो पूरे दुनिया का सबसे सशक्त माध्यम है। अगर आप कोई भी बात कह सकते हो और मासेस को पहुंचाना चाहते हो, आप फिल्मों की बात कर लीजिए, 3 इडियट्स ले लीजिए, मुन्ना भाई ले लीजिए, महात्मा गांधी की फिल्म, कोई भी फिल्म ले लीजिए, उसने रातों रात समाज को बदल के रख दिया है, रातों रात। तो ये जो विजुअल मीडियम है, ये सीधे आपको 2 घंटे में इतनी सारी बातें सुना के दे देता है। तो अपने देश में और पूरी दुनिया में सब लोगों के मन में ये जरूर ख्वाहिश रहती है कि हमारी बात पर्दे पे हो जाए, हम पर्दे पे आ जाएं। लिखने वाले लोग सोचते हैं, मेरे मित्र अभी डॉक्टर सागर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी बात हो रही थी, जो भी कविताएं लिखता है, जो भी फिल्म कुछ भी लिखता है, वो चाहता है यार एक बार अगर मेरी कविता किसी फिल्म में गाने का रूप ले ले तो मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ये जो सिनेमा है, इतना बड़ा ग्लैमर है और इतना बड़ा इसका रीच है, इतना बड़ी इम्पैक्ट है। आप तो स्टार हैं सर, आप तो इतनी फिल्मों में आपको देखते हैं लोग बाग, तो आप तो जानते हैं इसका महत्व क्या है। आपको देख के पहचान जाते हैं लोग बाग की देखिए संदीप जी को मैंने यहाँ देखा था, वहाँ देखा था। तो ये है सिनेमा की ताकत। इस सिनेमा की ताकत को सब लोग आजमाना तो चाहते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है या चाहते हो। और देखिए हीरालाल साहब बैठे हैं, इनकी फिल्म या वेब सीरीज आने वाली बहुत जल्दी। इनको भी इस चीज़ का एहसास है, सीनियर IAS ऑफिसर होने के बावजूद भी इनको लगता है यार ये चीज़ ऐसी है जिसके माध्यम से हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितने बच्चे बैठे हैं सब चाहते हैं कि हम कहीं न कभी पर्दे पर जरूर आएँ। कोई बच्चा है जो एक्टर बनना चाहता है इसमें? और कोई पीछे छोटे बच्चे एक्टर बनना चाहते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। एक बच्चे का आधा हाथ उठा हुआ है, क्या मतलब है इसका? तुम फिल्में करना चाहती हो, OTT नहीं है, ऐसा कुछ है? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और देखिए ये फिल्म तो एक चीज है, हम सभी लोग, हाँ बात करिए। यस हाँ, यस माइक प्लीज, वॉलंटियर्स गेट रेडी फास्ट। Yeah, actually, my goal is not to be a proper actor, but I'm like a poet, so I want to get my poems, get some kind of recognition in the world. And as my school knows that I write so many poems, but I want to get it to the world, not only to the school. So you write poems and you want that ये फिल्मों में गाने के रूप में आए? Yeah, kind of like song or in some dialogues to convey some message important, like usually I'm centered around the nature, saving and everything to sustain life. ये डायरेक्टर साहब बैठे हैं, ओमकार पेटकर जी, इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा। इनकी बहुत सारी प्रोजेक्ट आ रही हैं, इनको गीतों की भी ज़रूरत है और एक्टर्स की भी ज़रूरत है। ये ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे और हम लोग टच में रहेंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप ज़रूर आपका जो सपना है ज़रूर पूरा होगा, इसलिए हमें सपने तो देखना ही चाहिए। और किसके बड़े सपने हैं? यस सर, एक क्वेश्चन है सर। फिल्म मेकिंग इज फॉर गिविंग सम मैसेज या एंटरटेनमेंट के लिए है या ऐसा आर्ट फॉर्म है या ऑल दिस और एनीथिंग एल्स? देखिए फिल्म का एक डायलॉग था, मुझे लगता है ओमकार जी ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे। फिल्म इज़ मेड फॉर एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अब वो एंटरटेनमेंट आपकी सोल का कर रहा है, दिमाग का कर रहा है, शरीर का कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि बनाने वाले ने और देखने वालों को क्या चाहिए। कई बार आपको सेंसुअस सॉन्ग चाहिए होते हैं, उससे आप दूसरी तरह से आपका एंटरटेनमेंट होता है। कई बार जो हमारी फिल्म है इसको आप देखोगे तो आपको माँ बाप का प्यार, एक ऐसा प्यार जो पत्रों के माध्यम से हो रहा है, ये दोनों चिट्ठियाँ लिखते हैं एक दूसरे को, चिट्ठियों का प्यार, ये भी एंटरटेनमेंट है। आप ये मत सोचिए आपके नर्वस सिस्टम से वो निकलते हैं न्यूरॉन्स, आपको खुशी देते हैं। आप देखो ना सोशल मीडिया में, मुझे लग रहा है आप भी बोलना चाहिए, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया में जब लाइक्स देखते हो, लाइक है ना, वो एक बड़ी साइंटिफिक चीज़ है। उसको देखने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपको खुशी मिल जाती है।
सिमिलरली फिल्में देखिए, बेसिकली जो फिल्म मेकर होते हैं, ओमकार जी और ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर्पज एंटरटेनमेंट ही होता है, और वो एंटरटेनमेंट आपकी सोल का हो रहा है या फिर आपके दिमाग का हो रहा है, वो डिपेंड करता है अगेन बनाने वाले पर और देखने वाले पे। बनाने वालों का अपना पर्पज होता है। ये फिल्म भी एंटरटेनमेंट के लिए है, हम कोई मैसेज नहीं देना है। मैसेज देना है तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा सबको, 5000 लोगों को मैसेज कर दूंगा, चिट्ठी लिखवा दूंगा, पत्र लिखवा दूंगा, किताब लिख दूंगा। फिल्म जो भी बनाई जाती है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। एंटरटेनमेंट किस तरह का है वो देखने वालों पे निर्भर करता है, और कई बार बनाने वाले पे निर्भर करता है कि मेरे को इस तरह से बताना है। जी नहीं, बिल्कुल बहुत सही बताया सर। एंटरटेनमेंट ये प्राइमरी उसका कारण हो सकता है, और आपने जो बताया वो भी बिल्कुल सही है कि इट इज़ एन अमेलगम ऑफ एवरीथिंग। तो मैसेज उसका एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, और उसके बाद अप्रोच भी एक है कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं। मतलब अगर किसी को इंस्पिरेशन लेना है उससे, तो उसको ऑफ कोर्स वो इंस्पिरेशन ले सकता है। तो अपना अपना नज़रिया होता है बनाने वाले का और देखने वाले का। हेलो। तो हम लोग आपको अगर इन लोगों से भी कुछ सवाल पूछने हैं तो जी पूछे, मनीषा जी। जी मुझे मैं पहले कब से मैं वेट कर रही थी। आप गुजरात की कृष्ण की धरती पे आए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा हाँ, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे मैं प्रोफेशन से सिंगर हूँ और राइटर हूँ, तो मेरा जो माइंड कैच किया वो म्यूज़िक। आपकी फिल्म में म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा मुझे, जितना भी सुनाई दिया वो बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहती हूँ कि एक लाइन तो मैं सुन के ही जाऊँ, थोड़ा अगर जल्दी आप मुझे गाना सुनाओ। और एक मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी टीनेज बच्चे हैं, मैं एमफिल हुई हूँ गुजराती भाषा में, तो बच्चों को ना आज के सोशल मीडिया में एक बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं भी स्टार बनूँ। तो फिल्म में आने के लिए क्या प्रोसेस है ये तो मैंने जान लिया, मैम जो रील से आई है फिल्म की जर्नी उनकी हुई है, लेकिन फिल्म बनाने में जो A to Z जो मेहनत लगती है, अगर वो आप बच्चों को समझाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तनुष्का उसका आंसर देंगी। तनुष्का के 40 लाख फॉलोअर हैं इंस्टा पे, और कुछ 7-8 लाख फेसबुक पे, और 7-8 लाख यूट्यूब पे हैं। तो इनके पास करीब हज़ारों मेल आते हैं, और वो मेल आते हैं ऐसे कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, है तनुष्का ऐसे कुछ ना। तो ये क्या करती है, सारे मेल्स को डिलीट कर देती है, क्योंकि वो शादी तो करना नहीं है। तो आप तनुष्का ने हमारा मेल भी देखा था, निरीक्षा ने इनको मेल किया था कि हमें एक्टर चाहिए और आपको हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ काम करें। तो ये डिलीट करने जा रही थी, फिर सडनली इनको नज़र पड़ गई तो इन्होंने कांटेक्ट किया, और हम भी सोच रहे थे कि अब अगर इनका मेल नहीं आया, रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो वी आर गोइंग फॉर समवन एल्स। हम किसी और को करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते थे, हमारे पास वक्त की भी कमी थी। ओमकार जी हमें बहुत प्रेस कर रहे थे कि नहीं, वी नीड टू फाइंड आउट सम एक्टर्स। तो तनुष्का आप ये बताइए कि जो सोशल मीडिया का सवाल था, आप सोशल मीडिया में इतना सारा आपके फॉलोवर्स हैं, तो जो बच्चे सोशल मीडिया में एडिक्ट, जिसको हमारे पेरेंट्स बड़े टेंशन लेते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर इंस्टा में लगा रहता है, फेसबुक में लगा रहता है, पर आप तो सोशल मीडिया का ही पूरा फ़ायदा, इनका जीवन भी उसी से चलता है। जो कपड़े देख रहे हो ना, इतने सारे इनका जो खर्चे हैं वो वहीं से मेंटेन होता है, यूट्यूब, इंस्टा, है ना। तो मैं ये अमाउंट नहीं बताती हैं लेकिन ये पैसे बहुत कमाती हैं इंस्टा और यूट्यूब से, इंस्टा, यूट्यूब एंड फेसबुक काइंड ऑफ थिंग। बताइए कि बच्चों को किस लिमिट पे जाके रुक जाना चाहिए और किस लिमिट में जाके सोचें कि नहीं ये हमारा करियर हो गया। आपको कब लगा कि सोशल मीडिया हमें स्टार, मतलब हमें हमारा जीविका चला सकता है? मुझे अराउंड 6 इयर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। मैं पहले इंस्टा पे ही रील्स बनाती थी, देन उसके बाद यूट्यूब पे स्विच किया था कि ठीक है अभी खुद का कंटेंट वगैरह बनाती हूँ। सो करते करते ही लगता है ऐसे तो एकदम से यार नहीं क्लिक करता कि हाँ यही फील्ड करना है। इवन उस टाइम पे फैमिली भी थोड़ा मतलब होती है कि अरे क्या कर रहे हो, रील्स ही बनाना है क्या, तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। सबकी फैमिली बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाले फील्ड में नहीं भेजना चाहती बच्चों को, खास तौर से लड़कियों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डर रहता है। बट अगर आप सही हो ना तो यकीन मानो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस आपको खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रील्स वगैरह इंस्टाग्राम इन सब पे कर भी रहे हो तो आप खुद को सही रखो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियों को लेकर के ये बोल देते हैं अरे लड़कियां तो बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। तुम्हारा कंटेंट कैसा है वो मैटर करता है। लड़कियां बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, लड़के बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हो, कैसे कर रहे हो। और मेरा हमेशा से एक फोकस रहा है कि मैं कुछ भी करूँ ऐसा करूं कि मेरी फैमिली मेरे सामने बैठ करके वो चीज़ देख सके और मुझे उसमें शर्म ना आए। मुझे ऐसा लगे कि मतलब मेरे पापा मुझे हमेशा ये चीज़ बोलें ये मेरी बेटी है, वो किसी के सामने की बोलते हुए ऑकवर्ड ना फील करें कि
ये मेरी बेटी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो मेरा बस ये फोकस रहा है और आई थिंक मैं वो कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा बहुत प्राउड फील करते हैं और वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करने लगे हैं कि अच्छा इस फील्ड में है तो बहुत अच्छा है, लोगों से बताते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। सो दैट्स इट, यही बोलूँगी मैं। थैंक यू। आंसर मिल गया आपको और यंग बच्चों को भी पता चल गया होगा। हाँ, तो ये तो अनपढ़ है। अनपढ़ फिर से ऑन करके बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलिए। इसने खुद ही बताया कि हम अनपढ़ है। नहीं, अभी इसने शुरू किया है। एमएससी है, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन फूड एंड न्यूट्रिशन। नहीं, अच्छा, फील्ड में, एक्टिंग में। हाँ। अच्छा, इसमें मैं बताती हूँ, इसका जवाब मैं देती हूँ। आपने एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनी होगी। मेरे पास इसकी कोई डिग्री नहीं थी। मैंने मास्टर्स इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन किया है और साथ में बैचलर्स किया है होम साइंस से। बट मैंने जितना सीखा वो सोशल मीडिया से सीखा और सोशल मीडिया पे ही लोगों को दिखाया कि मैं क्या कर सकती हूँ और वहीं से मुझे सर मिले और वहीं से करते करते मैं सीखी हूँ। मुझे कोई टीचर नहीं मिले थे। मैंने मतलब रैंडमली लोगों को पकड़ा, देखा, सीखा और वही मैंने परफॉर्म किया। सो डिग्री नहीं है। आप एक सीन याद करके रखिए, आपके सामने लाइव एक्टिंग करेंगी ये। आप याद करके रखिए सीन, किस सीन पे एक्ट कराएं और ये करके दिखाएंगे आपको इनकी एक्टिंग। आप मैं बात वही कह रहा हूँ, ये इस फील्ड के लिए अनपढ़ है, ये प्रैक्टिकल है। रामचरण वर्मा है अपने फील्ड की। सर आई वांट टू, वो तो हम सब लोग भी हैं, इनफैक्ट हम भी अनपढ़ ही हैं। मतलब अनपढ़ का मतलब क्या है, जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हमने कोई FTII और NSD वाले तो नहीं है उमा सर। तो हम लोग सीख के। उमा सर जी कुछ बताइए। कैन आई से समथिंग? मैंने बहुत पढ़ाई की है सर, मैं इसलिए जवाब देता हूँ। मैंने भी इन्होंने पढ़ाई की है। अच्छा संदीप सर, कैन आई से समथिंग? सर आपके सवाल का ही जवाब है। क्या होता है ना कि इस फील्ड में क्या है ना, मतलब अनपढ़ हो इसका तो मुझे नहीं पता। जैसे मैंने काफ़ी साल थिएटर किया है, FTII और NSD के लिए ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे ऑफर्स आने लगे थे तो मैं काम करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है प्रैक्टिकल करके हम जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा हम नहीं सीख पाते कहीं पर भी। फील्ड पे ही पता चलता है कि आप कितने पानी में, वो रियलिटी होती है। तो इस एक्टिंग में क्या होता है ना, बहुत लोग क्या होता है वो पहले दिन आते हैं सेट पे और वो ऐसा करते हैं ना जो 5 साल से रिहर्स कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है कि मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि थिएटर में बहुत लेजेंडरी एक्टर्स रहे हैं, बहुत लेजेंडरी, मगर उनको मैं कैमरे के सामने अगर खड़ा कर देता हूँ, मतलब मैं क्यों करूँगा, जो वो खड़े होते हैं तो दे फंबल अलॉट, क्योंकि वो जो कैमरे का फियर होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो इस फील्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि आप बहुत बार बहुत मेहनत करके भी अच्छा नहीं कर पाते हो और बहुत बार आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ नेचुरल रहते हो, आप जो हो आप बहुत अच्छा कर जाते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस फील्ड, फ्रॉम थिएटर एंड एवरीथिंग। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि बहुत ऐसे लोग आए उनने वैसा कर दिया है कि मैं अचंभा हो गया कि यार मैं इतने साल से कर रहा हूँ। बाकी ये सर आपके शहर वाले ही हैं, लखनऊ वाले हैं। हाँ, इनके ऑफिस में जाके इनको समझ बताना सब। दैट इज ऑल्सो। संदीप जी आप कुछ बोल रहे थे। मुझे लगता है ये सारी बातें उदय ने कह ही दी। मैं ये कह रहा था कि सर आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक्टिंग स्कूल खुल गए हैं, आज म्यूज़िक स्कूल खुल गए हैं, लेकिन हम जब पुराने सिंगर्स को सुनते हैं, रफ़ी साहब ने कहाँ से सीखा, लता जी कौन से। अच्छा ये जो बता रहे हैं ना, एक मैं बीच में एक सेकंड के लिए आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आप अपनी वेब सीरीज में खुद भी एक्ट कर सकते हो। आप ऐसा सोच रहे होगे ना मन पर, आप एक्ट कर सकते हो, ये इंस्पिरेशन यहाँ से मिल रही है आपको। ये एक माध्यम है कि हम किस तरह से अपनी बात करते हैं। और मैंने बहुत सारी पढ़ाई, रिसर्च एक्टिंग में की है, बहुत समय तक थिएटर किया और इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो एक सबसे ख़राब चीज़ होती है जब हम बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत स्कॉलर हो जाते हैं, हमको सारी थ्योरीज पता हो जाती हैं, हम यहाँ रहते हैं और फिर हम यहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद जब हमको चेंज करना होता है अपने आप को, बहुत मुश्किल होता है कि मैं कैसे बदलूँ, अब मैं तो यहाँ हूँ और कुछ हम अपने आप में भी अपने आप को यहाँ महसूस करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उतना फ्लेक्सिबल रह पाना कि हम वापस नीचे कैसे आएँ। तो मुझे कई साल लगे अपने आप को एकदम ज़ीरो करने में कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा डायरेक्टर मुझसे जैसे एक्टिंग कराएगा मैं वैसा कर दूँगा। वो पानी की तरह हो जाना बड़ा कठिन काम है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं आप कहीं स्कूल में जाएं, आप प्रैक्टिस करें अपने।
थोड़ा पेन somebody पैसे की बहुत पैसा problem तो है सर। देखिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर लेके कोई काम चल पड़ो तो लोग जुड़ जाते हैं। जैसे ये लिटरेचर फेस्टिवल भी हम जो कर रहे हैं 10 सालों से, इसमें बहुत पैसा लगता है और हमें पता है, एक बार हम करने के लिए प्लान कर लेते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी सारी मदद हो जाती है कि हो जाएगा। बट जो ये बात कर रहे थे अभी हमारे डायरेक्टर साहब की, इतना रिस्क कैसे लेते हो, तो अगर आपको रिस्क से इश्क है तो आप कर पाओगे, फिल्म भी बना लोगे। और वो बता दो ना, मेरे जान पहचान के अहमदाबाद में जो है, अहमदाबाद में उमाशंकर यादव ये कही हैं, अभी मुझे दूसरे मिल नहीं रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, आप अपने आप में मिसाल हैं सबके लिए, आपके सब लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं। कुछ और लोग कुछ पूछना चाहें तो, नहीं तो हम एक दो बातें और करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब ने काफ़ी देर से बात नहीं की, जी बताइए आप कुछ अपना अनुभव, और फिल्म बनाने में डायरेक्टर का कितना रिस्क होता है, डायरेक्टर का क्या रिस्क होता है? सबसे बड़ा सर रिस्क मुझे ये लगता है कि जो स्क्रिप्ट में है वो पर्दे पे आएगा या नहीं आएगा, उसकी चिंता। मतलब हम लोग, आपको तो पता ही है हम लोग कितना डेलिब्रेट करते थे रोज़ स्क्रिप्ट को लेकर के, उसके डायलॉग्स को लेकर के, कहानी लिखने के बाद उसका स्क्रीन प्ले करना, ये सारा प्रोसेस बड़ा मज़ेदार होता है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं तो उसी चीज़ को ट्रांसलेट करना फ्रेम्स में, ये एक चैलेंज होता है। क्योंकि हम लोग जो दिमाग में सोचते हैं कि ये लोकेशन पे ऐसा होगा, ये हम लोग ऐसे शूट करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद लाइट्स की कंडीशन, लोकेशन की कंडीशन, सब जब थोड़ा सा हमको डिफरेंट लगता है, अलग लगता है, तो लगता है कि यहाँ पे ये सीन को किस तरह से हम लोग उसको तुरंत शिफ्ट करके उसको एडेप्टेबल बना दे, उसको इतना सटीक बना दे कि वो जो लिखा है बिल्कुल वही ट्रांसलेट हो पर्दे पर। तो ये रोज़ की चिंता होती है, और जब सब होने के बाद जब एडिट पे बैठते हैं तो चीज़ें सरल हो जाती है। बाकी काम हमारे एडिटर साहब ने कर दिया। राहुल राजपूत साहब बैठे हुए हमारे एडिटर हैं, सबसे लास्ट वाली कॉर्नर। तो ये जो बात कर रहे हैं, रात में कई बार इनके मैसेज या फ़ोन आते हैं मेरे, हम लोग 2-3 बार दिन में, अभी भी पिछले 4 महीनों से, मे भी 5 महीनों से, दिन में 3-4 बार बातें हमारी होती ही हैं हर चीज़ को लेके। कई बार इनके 2-3 बार मैसेज आए तो मुझे ऐसा लगा कि इनको थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, रिस्क का डर लग रहा है। मैंने बोला देख लेंगे, कोई बात नहीं चलते हैं भाई। अब लखनऊ जगह नहीं हमारी, अब हमारी जगह नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि हमारी जगह अहमदाबाद है। तो वहाँ बाराबंकी में शूट करना, बाराबंकी में बैठे हुए हैं प्रदीप सारंग साहब, इन्होंने बहुत मदद किया शूटिंग के दौरान। अब वहाँ की कल्चर डिफरेंट है, जो कल्चरल डिफरेंसेज हैं, भाषा, ओमकार जी मराठी गुजराती हैं, भाषा का भी इशू हो सकता था, कल्चर के इशू हो सकते थे, लोगों के साथ कैसे डील करें, बहुत सारी चिंताएं होती हैं डायरेक्टर की कि वहाँ पे जो चैलेंजेस आएंगे तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ये लेके कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम सब लोग हैं और हम सब लोग मिल के इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करेंगे। एंड थैंकफुली ऐसे महानुभाव हमें वहाँ मिल गए कि हमें इन चीज़ों की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ी। संदीप जी जैसे लोगों ने जो वहाँ पर मदद किया। आपको लिफ्ट नहीं दिया था, आप याद करिए, फिर आपने कहा वो लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, फिर मैंने इनको समझाया, दे भाई वो याद करिए, आपको नहीं ध्यान है। हाँ, फिर इनका फ़ोन आया मेरे पास, वो बोल रहे साहब ने बोल दिया, उनका हुक्म हो गया, मैं आप बोलो क्या करना है मुझे। तो ये बोलो जो बोलो, मैं आपके लिए 24 घंटे हूँ। अभी तब से 24 घंटे ही थे ये हमारे पास, तो फुल क्रेडिट टू यू सर। 24 घंटे मतलब ये रात में भी 10-11 बजे तक हम लोगों के साथ, तनुष्का के साथ घर भी लेके गए हमें अपने, तो बड़ा मज़ा आया। मतलब ये अब हमारे घर के हैं, ऐसा है। एंड फुल क्रेडिट टू यू, आपने ऐसे लोगों से आपने हमसे इनको छीन लिया, ये तो गलत बात है यार आपका। नहीं, मुझे याद आ रही है, एक बहुत लीजेंडरी एक्टर हैं, बड़े ही मैन हुआ करते थे। एक दिन वो एक डायलॉग बोल रहे थे कि हमारे पास इतना प्यार है ना कि हम 10-15 शादियाँ कर सकता हूँ। मतलब कि वो बोल रहे थे, उनसे पूछा गया तो वो यही बोलने लगी कि हमारे पास इतना प्यार है, आप हमें ऐसा नहीं कि उनके हो गए तो हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे भी उतने ही हैं जितने उनके हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए, इनके पास बहुत प्यार है, वो सबको देंगे, बराबर देंगे, कम नहीं होगा प्यार। जब भी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और यस, क्योंकि सेशन को थोड़ा 5-10 मिनट और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि थोड़ा देर से शुरू हुआ था और लंच हो ही रहा है, चल रहा है। तो आप लोग सवाल लेके आइए। ये लोग बहुत ही, आप जिनको ये देख रहे हो ना, मासूम टाइप के लोग लग रहे हैं, ये बड़े कड़े हुए मजे हुए लोग हैं, इनको सब पता है। आप जो भी सवाल पूछोगे ये बता देंगे, भले काम कम किया हो, लेकिन है इनको पता सब कुछ, सोशल मीडिया से लेके फिल्म से लेके। ये सागर साहब चालू है क्या? हाँ, धन्यवाद। ये जो साहस किया आपने,
और नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया तो साहस से श्री प्रतिवसति, रिस्क जिसको हिंदी में साहस कहते हैं। तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस साहस को आगे बढ़ाया है उनको श्री यानी लक्ष्मी तो मिलेगी, लेकिन श्री यानी शोभा, ऐसा दूसरा भी है। तो आपकी शोभा बढ़ रही है, समाज में एक नया कंसेप्ट आ रहा है। और जो साहस करने वाले लोग हैं, उस गुजराती में एक शेर शायरी है, मेरे दोस्त ने कही थी, तरंगो उछाड़ीने પડકાર ફેંકે, तरंगो उछाड़ीने પડકાર ફેંકે એ ગરજે અને આપણે જોઈ લઈએ। ये संसार सागर गरज रहा है और हम देखते रह जाएंगे किनारे पे सीपिया बटोरते। तो तरंगो उछाड़ीने પડકાર ફેંકે એ ગરજે અને આપણે જોઈ લઈએ, चलो જોઈ લઈએ समंदरનું પાણી। क्या बात। लेट अस सी द डेप्थ ऑफ द ओशन। वही काम आप सब कर रहे हैं। પછી શાંત આરાથી વાતો કરી। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको बधाई इस चर्चा का फलश्रुति। और आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारी पूरी हिंदी फीचर फिल्म ड्रॉप आउट है, ये गुजरात में ही बन रही है। तो कल मुझे कुछ पत्रकार बंधु थे, पत्रकार भाई थे हमारे साथ में, वो बोलने लगे हाँ कि ये हमारे गुजरात के लिए भी एक बड़ी प्राउड फीलिंग है कि ये इसका कॉन्सेप्ट राइटर, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब ये गुजरात में ही प्रोसेसिंग है। एडिटर साहब बैठे हैं, राहुल राजपूत साहब, म्यूजिक भी यहीं बना है, डीआई करने वाले 2 मुंबई में हो रहे, वो भी गुजराती बेस्ड हैं। तो बीइंग ए गुजराती वी फील वेरी प्राउड कि हम लोग हिंदी फिल्में भी बना रहे हैं और क्वालिटी हिंदी फिल्में, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड अबाउट इट। जी मैं डॉक्टर सागर, मैंने ड्रॉप आउट फिल्म के लिए गाने लिखे हैं। और अभी एक्टिंग को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जो आप सब ने बातें रखी, तो संदीप यादव से मेरा सवाल है। संदीप यादव फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा के पसंदीदा एक्टर हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बात है भाई। और एक हफ्ता पहले अनुभव सिन्हा ने एक पोस्ट लिखी थी कि जब तक कलाकार पढ़ेगा नहीं, जब तक कलाकार पढ़ेगा नहीं और अपने माहौल के प्रति अवेयर नहीं होगा, उसे पता नहीं होगा कि क्या सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, इन तमाम चीज़ों से संदीप भाई थप्पड़ फिल्म में अनुभव सिन्हा के साथ थे। एक जोड़ी इनकी थी और एक तापसी पन्नू वाली जोड़ी थी। तो लेकिन अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने ये बात रखी थी। संदीप भाई से मैं जानना चाहता हूँ कि अनुभव सिन्हा की उस पोस्ट पे आपका क्या रिएक्शन है। उसमें तमाम कमेंट्स आए कि श्रीदेवी नहीं पढ़ी थी और बहुत कलाकार नहीं पढ़े थे और इरफान खान सबसे ज़्यादा पढ़ते थे। मतलब वो इरफान खान इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा एकेडमिशियन माने जाते हैं एक्टरों में। इस पे संदीप भाई की राय मिले और ताकि सबको पता चले कि एक एक्टर के लिए या कलाकार के लिए ख़ास तौर से पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, मेरे मन का प्रश्न किया है। कुछ देर पहले जैसा डॉक्टर हीरालाल सर ने क्वेश्चन किया था कि उसने पढ़ाई नहीं की है, वो अनपढ़ है, तो उनका संदर्भ ये था कि आप किसी एक्टिंग स्कूल में जाके एक्टिंग की डिग्री लेके ही एक्टर नहीं बनेंगे। मैं आपको वो बात क्लियर करता हूँ। अनुभव सिन्हा सर ने जो पोस्ट लिखी, उन्होंने कहा कि एक्टर को पढ़ना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, सिनेमा किस तरह का बन रहा है। मुझे लगता है कि एक्टर तो दुनिया का वो प्राणी है जिसको सब पता होना चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं किस दिन कौन सा रोल करना पड़ेगा। और हमारे एक्टर्स की प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बड़ी सच्चाई से, मैंने कई बड़ी फिल्में की और कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्में की, वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, वो कर रहे हैं हिंदी फिल्म, फिर वो मेरे साथ उनका सीन होता है, वो धीरे से आके मुझसे पूछते हैं ये कैसे बोला जाएगा, मैं उन्हें बता भी देता हूँ कि सर ऐसे बोला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हट के मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप हिंदी फिल्में कर रहे हैं, आप हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते हैं, आप हिंदी बोलना भी नहीं जानते हैं, और आप मान लीजिए उसमें पुलिस वाला बने हैं, अजय सर बैठे हैं, या कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपने उसकी कोई स्टडी नहीं की है। मैं अगर किसी फिल्म में नेता बन रहा हूँ तो मैं भाई साहब पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई नेता मेरे सामने आ जाए और मुझसे कह देगा यार कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, या मैंने सर पुलिस वाले भी कई फिल्मों में रोल किए हैं। आपने नेता वाली बात किया, तैयारी, ये स्टडी, ये पढ़ना, नेता वाली बात किया, तो आपको मैंने एक नेता का बहुत अच्छा रोल देखा था, जॉन की फिल्म है,
कौन सी थी, बाटला हाउस, वो सर बैठे हुए हैं। बाटला हाउस में आपके नेता का रोल था, एक डायलॉग बोल सकते हो क्या उसका? नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। ये नेता बने हुए हैं उसमें। जॉन अब्राहम की फिल्में आप लोगों ने बटाला हाउस देखी हो, बाटला हाउस ना, बाटला हाउस देखी हो, तो उसमें इनका नेता का रोल है, बहुत बढ़िया रोल है। और क्या बोल रहे थे, मैंने तो, मुझे बहुत पसंद था वो। बाटला हाउस एक फिल्म है, बाटला हाउस एनकाउंटर, जो दिल्ली में हुआ था, उस पर बेस्ड है वो फिल्म। आप फिल्म देखिएगा, शायद प्राइम पे है वो फिल्म। आप वो फिल्म मैंने की थी, उसमें मैंने एक नेता का रोल किया था। तो अजय सर यहाँ बैठे हैं। सर वो फिल्म जब संजीव सर ने देखी, तो फिल्म देखने के बाद उन्होंने मुझे ढूंढवाया कि यार ये एक्टर कौन है, इसके बारे में पता करो। तो उनके बड़े भाई लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने पता किया, मालूम चला कि वो कोई एक्टर है। तो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हूबहू मैंने ऐसा ही कुछ देखा था और मुझे बड़ा मज़ा आया कि आपने, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी ताज़ा हो गई। मेरे लिए इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं किसी भी एक्टर के लिए। तो अनुभव सर वाली बात ये कि खूब पढ़िए, खूब सिनेमा देखिए और लोगों से खूब मिलिए। मेरे सोशल मीडिया पर मैं कल सर जब फ्लाइट से आ रहा था तो मैंने एक पोस्ट लिखी, मैंने लिखा कि लोग जब फ्लाइट से जाते हैं या खासकर जब वो विंडो सीट पे बैठते हैं तो सोशल मीडिया पे ज़रूर इन्फॉर्म करते हैं कि मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ। तो उसमें लोगों ने बहुत हंसी, बहुत मजाक की। लेकिन मैं अगर ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं रिक्शे में हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं कोने पे चाय पी रहा हूँ किसी दुकान पे, मैं वो भी पोस्ट करता हूँ। और पोस्ट तो यूँ ही कर देता हूँ, मेरी अपनी स्टडी चल रही होती है। मैं हीरालाल सर को, अजय सर को, या हमारे सारंग सर बैठे हैं, सत्या मैम बैठी हैं, बहुत सारे लोगों को यहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पता ही नहीं कौन सी फिल्म है, आप ही को लेके थोड़ा सा 20% आप होंगे, 40 स्क्रिप्ट होगी, बाकी का मैं मिला के पेश कर दूंगा। वो स्टडी सबको करना चाहिए और एक्टर को तो ज़रूर करनी चाहिए। और अनुभव सर से कल ही मुलाकात हुई, आपका भी जिक्र हुआ डॉक्टर साहब, वो लखनऊ आए हैं। अब देखिए वो फिल्म मेकर है, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है घूमने की। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं घूमने निकला हूँ, मैं देश भर में घूमूंगा। शर्मा चाय वाले हमारे लखनऊ में एक बड़े फेमस चाय वाले हैं, वहाँ पर आए, वहाँ आम लोगों से मिले, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं, सबसे मिले। कैसा फिल्में आप देखना चाहते हैं, कैसा सिनेमा देखना चाहते हैं, क्या ज़रूरत है कि इस्टेब्लिश डायरेक्टर को जाके इस तरह से लोगों से बात करने की। वो नब्ज़ पकड़ रहे हैं कि भाई मैं कैसा। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड थैंक यू वी कैन टेक 1 or 2 क्विक क्वेश्चंस अगर कोई करना चाहते हो तो, और फिर हम लोग रैप अप करेंगे क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होने वाला है इसके तुरंत बाद। रिलेटेड टू सॉन्ग्स की बात निकली तो जो हीरो हीरोइन है उनको कौन से सॉन्ग में, या उसकी 2 कपलेट या इसका थीम सॉन्ग जो पब्लिक में जा सके, ड्रॉप आउट ऑडियो चला दो यार दीजिए, या आप ऑपरेटर दीजिए। ये जो वो जो सॉन्ग है वो 1984 का है, 1984 का है। कपड़े बैठे, इनका लिखा हुआ गाना है। दिल ये मेरे साथ है या दिल किसी के साथ है, जानू ना मेरे मन की डोर किसके हाथ है। दिल ये मेरे साथ है या दिल किसी के साथ है, जानू ना मेरे मन की डोर किसके हाथ है। आसमां बिखर गया है रंग की तरह, दिल कहीं उड़ रहा पतंग की तरह। आसमां बिखर गया है रंग की तरह, दिल कहीं उड़ रहा पतंग की तरह, दिल कहीं उड़ रहा पतंग की तरह। उसमें और ये आवाज़ जो सुन रहे हो आप, सौमी जी बैठी हुई, सौमी जी जरा एक बार खड़ी हो जाइए प्लीज़, ये आवाज़ इनकी है। और आज शाम को ये परफॉर्म भी कर रहे हैं, आप लोग इनकी आवाज़ सुनने जरूर आना, ये रॉक स्टार हैं म्यूजिक की। और ये गाना बहुत जल्दी म्यूजिक कंपनीज के पास चला गया है, आपको यूट्यूब और सब जगह मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं वीडियोज़ के साथ। ये दोनों हैं इसमें, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक आध सवाल और ले लें, फिर हम लोग एक सेंटेंस का क्विक आप लोगों से अपडेट लेंगे, आगे जीवन में क्या करना चाहते हो, फिर हम फिनिश करेंगे। यस या अजय चौधरी साहब। यस। बहुत ही शानदार और बहुत प्यारी बातें, और इतने हमारे जितने कलाकार हैं, डायरेक्टर उमाशंकर जी, सब लोग, बहुत ही एक जीवंत और एक जो जज्बा होना चाहिए और जो जोश होना चाहिए वो आपकी बातों में दिखा। और संदीप भाई ने अनुभव सिन्हा का जिक्र किया,
तो मैं बताना चाह रहा था कि मेरे हॉस्टल फेलो हैं अलीगढ़ में, हम लोग साथ पढ़े हैं और अक्सर जो है कई सारी चीज़ों पे उनको कुछ पूछना होता है, डिस्कस करना होता है, ये बताने कि कितनी रिसर्च की जाती है कोई भी फिल्म बनाने में या प्रोजेक्ट बनाने में, कितनी मेहनत लगती है। और दूसरी एक और जो जनरल इम्प्रेशन लोगों के दिमाग में है कि कोई विलन का रोल कर रहा है या कोई एक्टर है तो ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते। मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है, जितना मैंने हिंदी सिनेमा के बारे में, लोगों के बारे में जाना है, अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत रिसर्चर होते हैं। गुलशन ग्रोवर, अब लोग हंस रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ा लिखा आदमी, ही इज़ ए टॉपर ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इरफान खान का नाम लिया, नसरुद्दीन शाह साहब हुए, अधिकांश लोग, शत्रुघ्न सिन्हा साहब से कभी कभी बात होती है, इतनी कितनी गहराई है इन लोगों के अंदर। तो बहुत टैलेंटेड, बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छे दिमाग के लोग, ब्रेनी लोग जाते हैं। और एक गढ़ है पूरे क्रिएटिव टैलेंट का मुंबई, तो वहाँ प्राण साहब, जितने भी लोग आप नाम लीजिए, ये सारे सब वेल रेड लोग हैं। और जो कॉमेडी करने वाले लोग हैं, उनसे आप 1 to 1 बात करके देखिए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग साधारण लोग नहीं हैं। तो आप सब लोग भी असाधारण लोग हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो विद दिस क्विक, क्या करना चाहती हो और क्या बनना चाहती हो? और यस, मुझे लाइफ में एक्ट्रेस ही हाँ, और सबको मैसेज दे दो कि फॉलोवर कैसे बढ़ाएं। रेगुलर रहना है, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे और बस करते रहो करते रहो। एक दिन वही सर वाली बात जो पीछे बोली भी गई थी कि आपको अपनी मेहनत शो करनी है, हौसला रखना है। आप करोगे, अच्छा होगा तो वो आगे जाएगा ही जाएगा, आज नहीं जाएगा कल चला जाएगा। और हमारी फिल्म ड्रॉप आउट को देखिए, इनके उसमें आपके फॉलोअर वैसे ही बढ़ जाएंगे। ड्रॉप आउट को ट्रेलर देखिए, इनके पेज पे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे बराबर। उदय, क्या करना चाहते हो जीवन में, आगे क्या बनना चाहते हो? फिलहाल तो अब एक्टिंग डिसाइड हो चुकी है, तो अब तो करना यही है। मतलब एक्टिंग में ही क्या मतलब हाँ, वही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं कि क्योंकि शुरुआत में एज एन ऐसे ही आया था, फिर बाद में पता चला कि हर प्रोफेशन में जी सकता हूँ, इसमें कुछ भी बन सकता हूँ। पढ़ाई की बात हुई, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत पढ़ता भी हूँ। तो एक एक्टर जिसके पास हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है, और सुपरस्टार एक्चुअली, जो कि एक्टर भी बहुत अच्छा है, हर टाइप की फिल्म कर रहा है, हर रोल कर रहा है। छोटी बड़ी से मतलब नहीं, रोल अच्छा होना चाहिए एंड उसमें डेप्थ होनी चाहिए, बस यही। थैंक यू। डायरेक्टर साहब से बात करूंगा, जो ये हमारी फिल्म ड्रॉप आउट है उसकी आत्मा है। एक्चुअली इन्होंने इतना काम किया है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। 3-3 घंटे 4-4 घंटे एडिटर के साथ चाहे बैठना है, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, चाहे एक्टर्स के साथ, चाहे मेरे साथ। इन्होंने मुझे भी ट्रेन किया कि यार कैसे एक्टिंग करना। मैं तो जैसे बता रहे हो ना कि अनपढ़ ही हूँ, एक्टिंग में तो अनपढ़ ही हूँ, तो जो भी छोटा मोटा किया है वो सब इनकी कृपा है, इनकी महिमा है। इन्होंने मैं बताया कि कैसे करना है, तो ये इस फिल्म की आत्मा है। पूरा क्रेडिट इनको हम देते हैं। इसको बनाने में, इतनी फिल्म बनाना बहुत मेहनत का है। जैसे अजय साहब अभी बता रहे थे ना, फिल्म बनाना इतना मुश्किल काम है। एक एक डिटेलिंग, ये 300 बार देखा है जो आपको ने ट्रेलर देखा, हम लोगों ने 300 बार। और कभी ये चीज़ करना है तो कभी वो करना है, कभी इस फ्रेम को छोटा करना है, कभी उसको बड़ा करना है, मतलब इस तरह से। तो आपके अंदर तो मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर की झलक देखता हूँ। आपके सपने क्या हैं? थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने ये कहा कि आपकी मेहनत है एक्चुअली कि, और आपका विजन है, सही कहूँ तो, क्योंकि आपने ये ट्रस्ट हम सब में रखा तभी जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाई है, ये एक फैक्ट है। और मेरे आगे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो सर कोलैबोरेशन में ही होगा जो भी होगा आगे। तो वही अभी हम लोग एक और फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, मैं सर के साथ परसों डिस्कस कर रहा था, तो बहुत जल्द उसका भी काम शुरू होगा। और संदीप जी को तो आप लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज में देखा होगा। मैंने इनको बताया कि मैं आपको एक दिन एक फिल्म का हीरो की तरह मैं आपको कास्ट करना चाहता हूँ। अब ये कहानी लेके आए तो इनको आप हमारी फिल्म में हीरो देख सकते हो, लीड रोल में। अब बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है, आप खुश हो या कुछ और करना चाहते हो? नहीं, मैं खुश हूँ और आगे मैं चाहता हूँ कि अच्छा सिनेमा बने। बहुत सी कहानियाँ हमारे बीच ऐसी हैं जो सिनेमा तक नहीं पहुँच पा रही हैं, और बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो जिस तरह का सिनेमा आप बना रहे हैं, या जैसा सिनेमा पंचायत जैसी सीरीज़ बहुत सबको पसंद है, जो शहरों में रह रहे हैं उन्हें भी पसंद है, गांव वालों को भी पसंद है, तो बड़ा अच्छा लगेगा यार गांव वापस लौट आए सिनेमा में और पर्दे पर। ये मेरी ख्वाहिश है। और मैं कुछ लिख रहा हूँ, चूँकि सर ने कहा है कि आप कुछ
लिखिए और बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैं आपसे जल्दी इस बारे में डिस्कस करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसके साथ ही थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना और इतने बढ़िया सवाल पूछे। हम लोगों ने कोशिश किया कि सारी बातें करीब करीब फिल्मों से संबंधित जितनी जानकारी है करने की कोशिश की, और भी बहुत सारी बातें करते रहेंगे। अगर आप लोगों को इन लोगों में से किसी से भी मिलना है तो यहीं पे अवेलेबल हैं 2 दिन, आप लोग इनसे मुलाकात कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए, बहुत अच्छा सेशन आने वाला है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय चौधरी साहब को, हीरालाल साहब को और डॉक्टर सागर को कि हमारे जो अभी आज के पैनलिस्ट हैं इनको सम्मानित करें। पैनलिस्ट को मनोज अग्रवाल साहब दिख रहे थे, नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। आप लोग आ जाइए। सागर साहब, वॉलंटियर्स प्लीज कम। मेमेंटोज। A huge round for applause for the team Dropout. Come